ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شادی کا ہال خوشبوؤں، روشنیوں اور رنگوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف کہے دعائیں اور پھولوں کی مہک۔ نیہا سمرو کے چہرے پر وہی چمک تھی جو ایک دلہن کے خوابوں کی ہوتی ہے، لیکن اس چمک کے پیچھے ایک انجانی لرزش بھی چھپی تھی، وہ خوف جو اکثر محبت سے شروع ہونے والے رشتوں کے ساتھ سایہ بن کر چلتا ہے۔ عدنان تمہیں واقعی بہت چاہتا ہے نیہا، اس کی دوست نمرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیہا نے سر جھکا لیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہاں، وہ کہتا ہے میں اس کی زندگی کی آخری خواہش ہوں۔ نمرا نے ہلکا سا ہنسا۔ اب دیکھو، یہ خواہش ہمیشہ کے لیے پوری ہو جائے بس۔ عدنان سیفری ایک خوش مزاج مگر بے حد جذباتی انسان تھا۔ کاروباری گھرانے سے تعلق رکھنے والا، آزاد مزاج، دل سے محبت کرنے والا، اور نیہا ایک عام مگر حساس دل رکھنے والی لڑکی جس نے اپنی ماں کی مخالفت کے باوجود اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ ماں نے کہا تھا، بیٹا کچھ رشتے دل سے نہیں عقل سے نبھائے جاتے ہیں، لیکن نیہا نے ہنس کر جواب دیا، امی جب دل ہی نہ مانے تو عقل کیا کرے۔ رات کا وقت تھا، شادی کے ہنگامے ختم ہو چکے تھے، گھر والے تھکے ہوئے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ پھولوں سے سجا وہ کمرہ نیہا کے خوابوں کا کمرہ جیسے خوشبو میں ڈوبا ہوا تھا۔ نیہا نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو دیکھا، سرخ جوڑے میں جھکی نظریں، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، لیکن دل میں ایک انجانا سا بوجھ۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، عدنان اندر آیا، لڑکھڑاتا ہوا، چہرہ لال، آنکھیں نیم بند، سانسوں میں شراب کی بو۔ نیہا چونک گئی۔ عدنان، آپ نشے میں ہیں؟ عدنان نے ہنسنے کی کوشش کی، بس تھوڑا سا، خوشی کا دن ہے نا، میری اور نیہا کی رات ہے۔ وہ قدموں میں لڑکھڑایا اور بیٹھ کے قریب پہنچا۔ نیہا نے گھبرا کر ہاتھ بڑھایا، عدنان سنبھلیں، لیکن اگلے ہی لمحے سب کچھ پل بھر میں بدل گیا۔ عدنان کا پاؤں قالین کے کنارے پر پھسلا اور وہ سیدھا آگے کو گرا اور اس کا سر بیڈ کے سخت کونے سے زور سے ٹکرایا۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں صرف ٹھک کی آواز گونجی، پھر سناٹا۔ عدنان، عدنان! نیہا چیخ اٹھی۔ وہ جھک کر اس کا چہرہ تھامتی رہی، مگر عدنان کی سانسیں رک چکی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک خالی خاموشی جم گئی تھی۔ نیہا کے ہاتھ کانپنے لگے، سانسیں بکھر گئی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عدنان اٹھیں پلیز۔ دروازہ کھلا، پہلے ساز، پھر سسر اور پھر شور۔ یہ کیا کیا تم نے نیہا؟ میرا بیٹا مار دیا تم نے؟ پولیس آ گئی۔ سب کچھ دھندلا گیا۔ چمکتے ہوئے خواب، محبت کے وعدے، سب ایک لمحے میں مٹی ہو گئے۔ اگلی صبح نیہا تھانے کے لاک اپ میں بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئیں، ہاتھ کانپتے ہوئے، جیسے اس کے اندر سے ساری روشنی چھن گئی ہو۔ کانسٹیبل دروازہ بند کر رہا تھا جب ایک بھاری آواز گونجی، کس جرم میں آئی ہے یہ لڑکی؟ سب خاموش ہو گئے۔ ایس ایس پی تیمور مرزا تھانے میں داخل ہو رہا تھا، اونچا قد، دمنگ چہرہ، نگاہوں میں عادتاً سختی اور لہجے میں اقتدار۔ کمرے میں موجود ہر اہلکار سیدھا ہو گیا۔ جناب، اس پر اپنے شوہر کے قتل کا الزام ہے۔ تیمور نے لاک اپ کے اندر جھانکا۔ سامنے والی لڑکی تھی جو کل دلہن بنی تھی، پھولوں کا جوڑا اب بکھر چکا تھا، آنکھوں کے گرد کالی لکیریں، مگر چہرے پر عجیب سی معصومیت۔ وہ نیہا سمرو تھی۔ نام؟ نیہا سمرو۔ کیس کی تفصیل؟ سر، شوہر زہریلے اثر سے ہلاک ہوا، لیکن موقع پر نشے کی حالت میں تھا، گرنے سے چوٹ آئی، مگر لڑکی کے ہاتھوں پر خون کے دھبے پائے گئے اور گھر والوں نے الزام لگا دیا ہے۔ تیمور کی نگاہ گہری ہو گئی، وہ آگے بڑھا، نیہا کے قریب آیا اور سلاخوں کے سامنے رک کر بولا، تم نے اپنے شوہر کو مارا؟ نیہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہیں سر، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود گرے تھے، میں نے تو بس۔ اس کی آواز رند گئی۔ تیمور چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ نیہا نے چونک کر اوپر دیکھا۔ کیا؟
हाँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, केस बंद करा सकता हूँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त सर? तैमूर की आंखों में वो चमक थी जो आम आदमी के बस की नहीं। उसने सलाखों के अंदर हाथ डालकर नेहा के आंसुओं से तर चेहरे को देखा और बोला, तुम मेरी बीवी बनोगी। कमरे में जैसे वक्त रुक गया, नेहा के हाथ लरस गए। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं करता, तुम्हें बचाने का यही रास्ता है, वरना तुम उम्र कैद काटती रहोगी, एक जुर्म के लिए जो तुमने किया ही नहीं। नेहा की आंखों के सामने अपनी मां का चेहरा घूम गया। अदनान की लाश, हथकड़ियां, सलाखें, पुलिस के सवाल और बाहर की दुनिया जो अब उसके लिए खत्म हो चुकी थी। उसने एक लम्हा भी नहीं सोचा। होंठ कांपे मगर जबान से सिर्फ एक लफ्ज निकला, हाँ। तैमूर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ठीक है, फिर तैयार रहो, आज से तुम नेहा सुमरो नहीं, नेहा तैमूर मिर्जा कहलाओगी। चंद दिन बाद अदालत में हैरान कुन फैसला सुनाया गया। शवाहिद नाकाफी होने की वजह से मुल्जिमा नेहा सुमरो को बरी किया जाता है। सब चौंक गए, मगर किसी ने तैमूर मिर्जा की आंखों में वो खामोश इत्मीनान नहीं देखा। जैसे वो जानता था अब ये लड़की हमेशा के लिए उसकी हो चुकी है। शादी बहुत खामोशी से हुई, ना कोई मेहमान, ना कोई गवाह, बस एक निकाह ख्वाह, दो एहलकार और तैमूर की वो निगाहें जो नेहा के दिल में खौफ बनकर उतर गई। निकाह के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी मलकियत हो। नेहा ने नजरें झुका ली। ये कैसी शादी थी? क्या ये मोहब्बत थी या एक नया कैद खाना? जो भी था वो अब उसके हिस्से की तकदीर बन चुका था। रात के अंधेरे में जब वो नए घर तैमूर के बंगले में दाखिल हुई तो उसने देखा दीवारों पर शानदार तस्वीरें लगी थी, मगर उन तस्वीरों में एक चेहरा बार बार दोहराया गया था, एक हसीन औरत का। नेहा ठुठक गई। ये कौन है? दरवाजे से एक धीमी आवाज आई। मेरा नाम माहम है और मैं तैमूर मिर्जा की बीवी हूं। नेहा के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। घर की राहदारी में हल्की हल्की खुशबू फैली थी, मगर उस खुशबू में अजीब सा घुटन भरा हुआ था। तैमूर मिर्जा के बंगले में सब कुछ मुकम्मल नज़्बो ज़ब्त से चलता था, जैसे हर दीवार, हर दरवाजा, हत्ता कि सांस लेने का भी एक वक्त मुकर्रर हो। नेहा ने धीरे से कमजोर कदमों के साथ अंदर कदम रखा। सफेद मार्बल के फर्श पर उसके जूते की चाप साफ सुनाई दे रही थी। दिल में खौफ की धड़कन, निगाहों में अजनबियत। माहम सीढ़ियों के सिरे पर खड़ी थी। आंखों में हैरत नहीं, थकन थी, जैसे वो बहुत कुछ पहले ही जानती हो। तुम नेहा हो ना? नेहा ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया। जी। आप माहम हैं? माहम हल्की मुस्कुराहट के साथ करीब आई। हाँ, तैमूर की पहली बीवी। ये जुमला किसी तेज धार चाकू की तरह नेहा के दिल में उतर गया। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। फिर माहम ने धीरे से कहा, खौफ मत खाओ, यहां सब डरते हैं, यहां तक कि मैं भी। नेहा ने हैरान होकर पूछा, आप क्यों डरती हैं? माहम के लबों पर कड़वी हंसी आई। क्योंकि तैमूर सिर्फ पुलिसमैन नहीं, अपने घर में भी एसएसपी है। यहां पर हर बात उसकी इजाजत से होती है, हत्ता के सांस लेना भी। उसी वक्त तैमूर की भारी कदमों की चाप सुनाई दी। माहम खामोश हो गई। तैमूर सीढ़ियों से उतर रहा था, मुकम्मल वर्दी में, आंखों में सर्द चमक। नेहा, ये तुम्हारा नया घर है, याद रखो यहां कोई सवाल नहीं पूछे जाते, बस हुक्म माने जाते हैं। उसने करीब आकर कहा, तुम्हें मैंने बचाया, अब तुम मेरी अमानत हो। नेहा ने नजरें झुका ली। दिल चाहा कुछ कहे, मगर होंठ जैसे सिल गए हों। दिन गुजरते गए। नेहा को एहसास होने लगा कि तैमूर मिर्जा के महल नुमा घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं। यहां पर आवाज दबकर रह जाती, हर चीख दरवाजों के पीछे दफन हो जाती। एक रात वो जाग रही थी जब नीचे से किसी औरत की चीख सुनाई दी। वो चौंक कर भागी। माहम जमीन पर गिरी हुई थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर ताजा नील। तैमूर दरवाजे के करीब खड़ा था, हाथ में बेल्ट थामे। ये तुम्हारा क्या हाल कर रखा है?
नेहा चीख उठी। तैमूर ने सर उठाकर नेहा को देखा। ये मेरी बीवी है और बीवी का हक मैं तय करता हूं, कोई दूसरा नहीं। नेहा का जिस्म लरस गया। माहम ने धीरे से नेहा का हाथ पकड़ा और आंखों से इशारा किया, खामोश रहो। तैमूर ने हंकारा भरा और कमरे से निकल गया। उस रात नेहा माहम के साथ बैठी रही। दोनों खामोश थी। फिर माहम ने आहिस्ता से कहा, मैं कभी इससे मोहब्बत करती थी, अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन मोहब्बत के बाद जो कुछ हुआ वो सिर्फ अजियत थी। तुमने खुद को बचाने के लिए हाँ कही थी, मैंने दिल की ख्वाहिश में हाँ कही थी और दोनों ने सजा पाई। नेहा ने माहम का हाथ थाम लिया। हम क्या कर सकती हैं, वो तो सब पर हावी है। माहम ने सर उठाया। हम उससे आजाद हो सकती हैं अगर हिम्मत हो तो। नेहा ने उसकी आंखों में झांका, वो आंखें जिनमें दर्द के साथ एक फैसला भी छुपा था। तैमूर मिर्जा एक माहिर शिकारी की तरह था। दिन में वो कानून का मुहाफिज बनता और रात में अपनी बीवियों के खौफ से लुत्फानंदोज होता। एक दिन नेहा ने देखा कि तैमूर अपने फोन पर किसी से सरगोशियों में बात कर रहा है। आवाज सख्त थी। काम साफ होना चाहिए, कोई सबूत नहीं छोड़ना। उसने खिड़की के पीछे छुपकर सुना। बात खत्म हुई तो तैमूर ने सिगरेट सुलगाया और बोला, जो मेरे रास्ते में आएगा खत्म कर दूंगा। नेहा की सांस रुक गई। वो अब समझ चुकी थी कि तैमूर सिर्फ एक बदतमीज शौहर नहीं बल्कि अंदर से एक सफाक इंसान है। रात को जब वो कमरे में अकेली थी, दरवाजा हल्का सा खुला और माहम अंदर आई। हाथ में एक छोटा सा फोन था। ये एक नंबर है, माहम ने सरगोशी में कहा। यह शख्स किसी को भी खत्म कर सकता है अगर कीमत अदा की जाए। नेहा ने हैरान होकर पूछा, कौन? हाशिम खान, अंडरवर्ल्ड डॉन। नेहा के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों जागे। क्या तुम पागल हो गई हो? वो खतरनाक आदमी है। माहम ने संजीदगी से जवाब दिया, तैमूर उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर हमने कुछ ना किया तो एक दिन हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। हम उससे बच कैसे पाएंगी? माहम ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। जब औरत खौफ से ऊपर उठ जाए तो वो किस्मत बदल सकती है। अगले दिन तैमूर किसी सरकारी मीटिंग के लिए शहर से बाहर गया। ये उनका मौका था। माहम ने पुराने फोन से हाशिम खान से राब्ता किया। दूसरी तरफ से भारी आवाज गूंजी, कौन हो तुम लोग? माहम ने गहरी सांस ली। दो औरतें जो आजादी चाहती हैं। हमें एक शख्स से निजात चाहिए, उसका नाम तैमूर मिर्जा है। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर हाशिम हंसा। तैमूर मिर्जा, वो पुलिस वाला? तुम जानती हो तुम किससे पंगा ले रही हो? माहम ने सख्त लहजे में कहा, हमें परवाह नहीं, हमें सिर्फ आजादी चाहिए, बाकी तुम्हारी कीमत। फोन बंद हो गया। नेहा ने कांपते हुए पूछा, अगर उसने हमारा राज फाश कर दिया तो? माहम ने जवाब दिया, फिर हम मर जाएंगी, मगर तैमूर के कैद खाने में नहीं। रात गए फोन पर एक मैसेज आया, काम 3 दिन में हो जाएगा, रकम तैयार रखो। नेहा ने दुआ के लिए हाथ उठाए। दिल में खौफ था मगर साथ ही पहली बार एक एहसास, शायद वो फिर से सांस ले सकेगी। 3 दिन तक घर में एक अजीब सी बेचैनी छाई रही। तैमूर अपनी मामूल की सख्ती में मसरूफ रहा, मगर नेहा और माहम के चेहरों पर अब सुकून नहीं, सिर्फ इंतजार था। तीसरे दिन शाम के वक्त तैमूर दफ्तर से निकला। माहम ने खिड़की से उसे जाते देखा। नेहा ने आहिस्ता से कहा, क्या वो वाकई मर जाएगा? माहम ने सर्द लहजे में कहा, हाँ, वो मरेगा जैसे उसने हमारी रूहों को मारा। रात के 11 बजे खबर आई, एसएसपी तैमूर मिर्जा की गाड़ी को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके तबाह कर दिया। मौके पर हलाक। नेहा के हाथों से फोन गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं थे, ये पहली बार के सुकून के आंसू थे। माहम ने नेहा के कंधे पर हाथ रखा, अब हम आजाद हैं नेहा। रात के 2 बज रहे थे। कराची की सड़कों पर सन्नाटा छाया था। सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज खामोशी चीर रही थी। नेहा और माहम एक छोटे से घर में दुबक कर बैठी थी, वही घर जिसे तैमूर कभी खुफिया ठिकाना कहा करता था। आज वो ठिकाना ही उन दोनों की पनाहगाह बन गया था। टीवी स्क्रीन पर बार बार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी।
SSP तैमूर मिर्जा फायरिंग के वाकये में हलाक। पुलिस को शुबा है कि हमला मुनज़्ज़म अंदाज में किया गया। नेहा ने टीवी बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। ये सब खत्म हो गया माहम, अब हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा ना? उसने लरसती आवाज में पूछा। माहम ने सिगरेट बुझाकर कहा, खत्म? नेहा, कोई चीज आसानी से खत्म नहीं होती। एक जिंदगी मिटाने के लिए हमने दूसरी जिंदगियों के दरवाजे खोल दिए हैं। नेहा ने सर पकड़ लिया। तुम कहना क्या चाहती हो? हाशिम खान ने काम पैसों के लिए किया, मगर अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। जो डॉन एक पुलिस ऑफिसर को मार सकता है, वो 2 औरतों को बख्श देगा? नेहा की आंखों में खौफ उतर आया। हमने तो वादा पूरा किया था, रकम भी तो जूं ही दी गई थी। माहम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, लेकिन इस दुनिया में वादों से ज्यादा दिलचस्प चीजें हैं, राज, कमजोरियां और औरतें। हाशिम खान को ये तीनों बहुत पसंद है। चंद दिन गुजर गए। तैमूर की मौत के बाद शहर में हलचल मच गई। पुलिस ने कई जगह छापे मारे, मगर कातिल का कोई सुराग ना मिला। दोनों औरतें खामोशी से एक नई शनाख्त के साथ शहर के दूसरे कोने में मुंतकिल हो गई। नेहा अब नूर फातिमा और माहम मरजान के नाम से जानी जाती थी। एक शाम जब नेहा बाजार से वापस आ रही थी, एक स्याह गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई। अंदर वही शख्स था जिसकी आवाज फोन पर सुनी थी। हाशिम खान। बैठो। मोहतरमा नेहा सुमरो कहूं या तैमूर मिर्जा की बेवा? नेहा के कदम जम गए। मैं आपको नहीं जानती, हाशिम ने मुस्कुराकर कहा। झूठ बोलने की आदत औरत को हसीन बना देती है, मगर तुम्हें बचा नहीं सकती। बैठ जाओ, बात करनी है। दिल धड़कने लगा। वो गाड़ी में बैठ गई। अंदर महंगे अतर की खुशबू थी, मगर फिजा में खतरे की बू। काम तो हो गया, हाशिम ने सिगरेट झुलकाते हुए कहा, लेकिन एक मसला रह गया है। कौन सा मसला? तैमूर मिर्जा मर तो गया, मगर पुलिस जानती है कि यह काम आम आदमी का नहीं। अब उनके शक तुम दोनों पर जा रहे हैं, और जब तक मैं चाहूंगा वो तुम्हें नहीं छुएंगे। नेहा ने बेचैनी से पूछा, आप क्या चाहते हैं? हाशिम ने धीरे से कहा, बस थोड़ा सा साथ। मेरे लिए काम करोगी? नेहा चौंक गई। क्या काम? मेरी कुछ फाइलें, कुछ लोग जिनसे पुलिस को बचाना है। तुम तैमूर के दफ्तर की अंदरूनी तफसीलात जानती हो, वो फाइलें मेरे हाथ लगनी चाहिए। नेहा की सांस रुक गई। अगर मैं इनकार कर दूं तो? हाशिम ने मुस्कुराकर सिगरेट रागदान में बुझा दिया। तो तुम्हारी नई शनाख्त, तुम्हारी रिहाइश और तुम्हारा राज सब एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। नेहा खामोश रही। हाशिम ने कहा, कल शाम 7 बजे मेरे आदमी तुम्हें लेने आएंगे। याद रखो, अब ये खेल तुम्हारे इख्तियार में नहीं। गाड़ी रुक गई। नेहा उतर गई। गाड़ी धुआं छोड़ती अंधेरे में गायब हो गई और नेहा का दिल खौफ से सन्नाटे में डूब गया। घर पहुंचकर नेहा ने माहम को सब कुछ बताया। माहम कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मैंने कहा था ना, वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो अब क्या करें? नेहा की आंखों में बेबसी थी। माहम ने गहरी सांस ली। हमें उसके खेल में उससे बेहतर बनना होगा। हाशिम खान सिर्फ ताकत को मानता है, हमें उसे दिखाना होगा कि हम भी कमजोर नहीं। मगर कैसे? हम तैमूर की खुफिया फाइलें तलाश करेंगे, उनमें उसके जराइम के सबूत हैं। हाशिम उन्हीं फाइलों के पीछे है। अगर वो हमारे पास हों तो हम उसके खिलाफ ढाल बना सकते हैं। नेहा ने सर हिलाया। तैमूर का दफ्तर तो सील हो चुका है। सील सिर्फ दिखावे का होता है नेहा। मैं जानती हूं कि तैमूर ने अपने कमरे में एक खुफिया लॉकर बनाया था। अगर हम वहां पहुंच जाएं तो शायद अपनी जिंदगियों की चाबी मिल जाए। अगली रात दोनों बुरका उड़कर तैमूर के पुराने ऑफिस के करीब पहुंची। वो इमारत पुलिस की निगरानी में थी, मगर अंदर दाखिल होने का एक पिछला रास्ता माहम को याद था। दीवार फलांकर दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए वो अंधेरे में दाखिल हो गई। नेहा के हाथ कांप रहे थे। माहम, अगर पकड़ी गई तो? अगर कुछ ना किया तो हमेशा के लिए कैद में रहेंगे। कमरा खामोश था। डेस्क पर पड़ी फाइलों में से माहम ने एक दराज खोली। नीचे लकड़ी के तख्ते के नीचे एक फौलादी चाबी छुपी थी। माहम ने चाबी उठाई।
यही है। दीवार के एक पैनल को दबाया तो छोटा सा लॉकर खुल गया। अंदर दर्जनों फाइलें, कुछ तस्वीरें और एक यूएसबी पड़ी थी। माहम ने जल्दी से सब समेट लिया। अचानक बाहर से आवाज आई, पुलिस के कदम। यहां कोई है? दोनों के जिस्मों में बिजली सी दौड़ गई। नेहा ने हाथ पकड़ा। दौड़ो। वो पिछले रास्ते से भागती निकली। गली में पहुंचकर सांस फूल गए। हम बच गए, नेहा हाँफते हुए बोली। माहम ने फाइलों को सीने से लगाया। हाँ, लेकिन अब खेल शुरू हुआ है। अगली सुबह फाइलों को खोलकर देखने पर इंकशाफ हुआ कि तैमूर मिर्जा सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि हाशिम खान का खुफिया पार्टनर भी था। ड्रग ट्रेड, स्मगलिंग और सियासी कत्ल, हर जुर्म के पीछे उन दोनों का नाम जुड़ा था। नेहा ने हैरान होकर कहा, तो इसने हमें बचाया नहीं था बल्कि अपने राज बचाने के लिए हमसे शादी की थी। माहम की आंखों में खौफ भड़क उठा। और हाशिम अब सब छुपाना चाहता है। अगर ये फाइलें मीडिया तक पहुंच गईं तो हाशिम खान की सल्तनत खत्म हो जाएगी। नेहा ने फाइलें हाथ में ली। फिर हमें ये सच सामने लाना होगा। माहम ने सर झुकाया। हाँ, मगर कीमत बहुत बड़ी होगी। अगली रात जब दोनों सामान समेट कर निकलने लगी, दरवाजा जोर से खुला। 3 नकाबपोश अंदर दाखिल हुए। एक के हाथ में हथियार था। हाशिम खान का कहना है फाइलें वापस करो वरना कहानी खत्म। माहम आगे बढ़ी। कहानी खत्म नहीं हुई, अब शुरू होगी। उस लम्हे उसने एक छोटा सा गैस सिलेंडर फेंका। धमाके से धुआं फैल गया। दोनों औरतें खिड़की से कूदकर बाहर भाग निकली। नेहा के हाथ में वो यूएसबी मजबूती से दबी थी। उनकी निजात, उनका सबूत और उनका इंतकाम। रात के अंधेरे में जब वो शहर के किनारे पहुंची, माहम ने आसमान की तरफ देखा। तैमूर मर गया मगर उसके गुनाह जिंदा हैं। अब हम सिर्फ भागने वाली नहीं, इंसाफ देने वाली औरतें हैं। नेहा ने आहिस्ता से कहा, और हाशिम खान के लिए अब हम वो साया हैं जो उसके हर कदम के पीछे रहेगा। हवा तेज हो गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अंधेरे में गायब हो गई, एक नई जंग की तरफ। पथरीली मस्जिद के पीछे वो गली हमेशा सुनसान रहती थी, मगर उस दिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी। माहम ने नेहा का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। याद रखना, यहां कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। हम जो करने जा रही हैं उसकी वापसी नहीं होती। नेहा के कदम लरस गए थे। क्या वाकई यही वाहिद रास्ता है? माहम ने खामोशी से हाँ में सर हिलाया। हाँ, यही, क्योंकि तैमूर मिर्जा जिंदा रहा तो हम कभी जिंदा नहीं रह पाएंगी। गली के आखिर में एक पुराना सा दरवाजा था। माहम ने आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही अंदर अंधेरा फैला हुआ था और सिगरेट के धुएं ने फिजा को घेर रखा था। एक भारी आवाज गूंजी। कौन है? हाशिम खान से मिलना है, माहम ने एतमाद से कहा। चंद लम्हों बाद एक लंबा चौड़ा आदमी साए से बाहर निकला। चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में जहर। मैं वही हूं, हाशिम खान। कौन हो तुम दोनों? पुलिस की भेजी हुई जासूसें तो नहीं? उसकी आवाज में तहकीर और खतरा दोनों थे। माहम ने पर्स से एक लिफाफा निकाला। ये उसका नाम है जिसे हम मारना चाहते हैं, तैमूर मिर्जा, और ये उसकी तस्वीर। हाशिम ने तस्वीर को देखा, फिर सिगरेट का कश लिया और कहका मार कर हंसा। वाह भाई वाह, एसएसपी तैमूर मिर्जा, तुम्हारा तो निशाना बड़ा है, लेकिन क्यों? नेहा बोल उठी। क्योंकि वो दरिंदा है, उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाशिम ने गौर से नेहा की तरफ देखा, जैसे उसकी आंखों में खौफ नाप रहा हो। बीबी, ये रास्ता आसान नहीं। एक बार सौदा तय हो जाए तो खून बहना यकीनी है। सोच लो, पीछे नहीं हट सकती तुम। माहम ने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगी। हमें सिर्फ एक काम चाहिए, तैमूर मिर्जा मर जाए। हाशिम ने धुआं छोड़ते हुए कहा, ठीक है, लेकिन कीमत लगेगी। कितनी? 50 लाख। आधी रकम पहले, बाकी काम के बाद। नेहा ने हैरत से माहम की तरफ देखा। इतने पैसे कहां से आएंगे? माहम ने गहरी सांस ली। मेरे पास हैं, मैंने बरसों उसके जुल्म के दौरान जमा किए थे। अब वही रकम उसकी मौत पर खर्च होगी। हाशिम ने एक फाइल उनके सामने रख दी।
یہ بس نام کی ضمانت ہے تاکہ کوئی پچھتاوا ہو تو تمہیں یاد رہے کہ تم نے خود دستخط کیے تھے۔ نیہا کے ہاتھ کانپ گئے۔ کاغذ پر سیاہی سے لکھا تھا، ٹارگٹ SSP تیمور مرزا۔ قلم پکڑتے وقت اس کے دل میں ہزار خیال آئے۔ عدنان کی موت، اپنی معصومیت، تیمور کی نظروں کا خوف۔ لیکن پھر اسے وہ رات یاد آئی جب تیمور نے اس کا بازو مروڑ کر کہا تھا، میری اجازت کے بغیر سانس لینا بھی جرم ہے۔ اس نے قلم مضبوطی سے تھاما اور دستخط کر دیے۔ سودا طے ہو گیا۔ رات کا وقت تھا۔ بنگلے میں تیمور مرزا واپس آیا۔ دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے اس نے نیہا کو کچن میں دیکھا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی تھی، نیہا نے دھیرے سے کہا۔ تو پھر گولیاں کھا لیا کرو، میرے گھر میں نیند کا بہانہ نہیں چلتا۔ یہ جملہ اس کے لیے ایک زخم بن گیا۔ نیہا خاموشی سے پلٹ گئی۔ ماہم دوسرے کمرے میں تھی، مگر دونوں کے دل ایک ہی بات سوچ رہے تھے، جلد ہی سب ختم ہو جائے گا۔ اگلی شام ہاشم خان نے فون کیا، کل رات 11 بجے تمہارے بنگلے کے قریب والا سڑک کا موڑ، باقی سب ہم دیکھ لیں گے۔ اور لائن کٹ گئی۔ ماہم نے نیہا کی طرف دیکھا۔ کل کے بعد ہم آزاد ہوں گے۔ لیکن آزادی کا یہ لفظ جیسے نیہا کے دل میں چپ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بار بار عدنان کا چہرہ ابھرتا۔ پھر سے خون، پھر سے موت۔ کیا میں پھر وہی کر رہی ہوں جو قسمت نے مجھ سے چھینا تھا؟ مگر یہ سوال دل میں ہی دب گیا۔ اب وہ راستہ بدل نہیں سکتی تھی۔ اگلی رات 10:55 پر بارش شروع ہو چکی تھی۔ سڑک خالی تھی۔ تیمور اپنی گاڑی میں پولیس لائن سے واپس آ رہا تھا۔ نیہا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ماہم نے آہستہ سے کہا، بس چند لمحے اور۔ دور سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ وہی گاڑی، وہی نمبر پلیٹ، SSP 01۔ اچانک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ زمین ہل گئی۔ نیہا کی چیخ گلے میں ہی دب گئی۔ دھوئیں اور آگ کے درمیان وہ صرف اتنا دیکھ پائی، گاڑی الٹ چکی تھی۔ چند لمحوں بعد پولیس کے سائرن بجنے لگے۔ ماہم نے نیہا کا ہاتھ پکڑا۔ سب ختم ہو گیا، وہ مر گیا۔ نیہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خوشی کے، خوف کے یا پچھتاوے کے، خود اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ اگلی صبح بنگلے کے باہر میڈیا کا ہجوم تھا۔ خبروں میں چل رہا تھا، SSP تیمور مرزا کار دھماکے میں ہلاک۔ پولیس نے ابتدائی رپورٹ میں اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا۔ نیہا چپ چاپ بالکنی میں کھڑی تھی۔ ماہم اس کے برابر آئی۔ ہم آزاد ہیں نیہا، واقعی آزاد۔ نیہا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں کے پیچھے سورج جھانک رہا تھا، مگر اس کے دل پر اندھیرا چھا گیا۔ آزادی کبھی اتنی بھاری کیوں لگتی ہے؟ اسی لمحے نیہا کا فون بجا۔ اسکرین پر ایک نیا نمبر تھا۔ اس نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف ایک مانوس آواز تھی، بھاری، سرد اور خطرناک۔ نیہا سمرو۔ نیہا کے قدم منجمد ہو گئے۔ تیمور مرزا کبھی نہیں مرتا، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ فون بند ہو گیا۔ نیہا کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ ماہم نے گھبرا کر پوچھا، کون تھا؟ نیہا کی سانسیں پھول گئیں۔ وہ تیمور۔ رات کے پچھلے پہر نیہا کے کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ بارش کی قطروں کی آواز کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر اس بار وہ آواز اس کے دل کو تسکین نہیں دے رہی تھی، بلکہ کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہی تھی۔ فون کی کال ختم ہو چکی تھی، مگر تیمور مرزا کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ نیہا نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ نہیں، یہ کوئی مذاق ہے، تیمور مر چکا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی گاڑی جلتی دیکھی تھی۔ مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کال لاگ دیکھی، نمبر نامعلوم، لیکن کال کی لوکیشن لاہور پولیس ہیڈ کوارٹر۔ ماہم اندر آئی، چہرے پر تھکن اور بے چینی تھی۔ نیہا تمہیں کیا ہوا؟ تم اتنی پیلی کیوں لگ رہی ہو؟ نیہا نے لرزتی آواز میں کہا، وہ زندہ ہے ماہم، تیمور مرزا زندہ ہے۔ ماہم چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر ہلکا سا ہنسی۔ یہ ممکن نہیں، وہ گاڑی دھماکے میں مکمل جل گئی تھی،
तुम खुद जानती हो कि हाशिम ने कहा था लाश पहचानी नहीं जा सकी थी। हाँ, यही तो बात है। नेहा की आवाज कांप गई। लाश पहचानी नहीं जा सकी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। माहम ने गहरी सांस ली। अगर वो जिंदा है तो वो हमें ढूंढेगा। नेहा ने आहिस्ता से कहा, नहीं माहम, वो हमें मारेगा। अगली सुबह अखबार के पहले सफ़े पर हेडलाइन थी, एसएसपी तैमूर मिर्जा जिंदा, धमाके में शदीद जख्मी मगर मौजजाना तौर पर बच गए। नेहा के हाथों से चाय का कप छूटकर जमीन पर जा गिरा। खबर के साथ एक तस्वीर थी। तैमूर व्हीलचेयर पर बैठा था, चेहरे पर जख्मों के निशान मगर आंखों में वही पुरानी दरिंदगी। माहम के चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। नेहा ने खिड़की के बाहर देखा। लॉन में हवा के साथ कोई साया हिलता हुआ लगा, जैसे कोई वहां मौजूद हो। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। माहम ने फौरन दरवाजा बंद किया। हमें यहां से निकलना होगा, अभी। शाम ढले वो दोनों हाशिम खान के अड्डे पर पहुंची। दरवाजा बंद था। नेहा ने जोर से दस्तक दी। हाशिम खान, दरवाजा खोलो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कोई जवाब नहीं आया। चंद लम्हों बाद अंदर से एक छोटा लड़का निकला, जिसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। खान साहब नहीं है। कहाँ गए? माहम ने तेजी से पूछा। पता नहीं, कल रात कुछ लोग आए थे, वर्दी वाले, वो खान साहब को अपने साथ ले गए। नेहा और माहम ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो उसे पकड़ चुका है, माहम ने सरगोशी में कहा। अचानक नेहा को एहसास हुआ कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अब उनके पास भागने की कोई जगह नहीं बची। उसी रात तैमूर मिर्जा अपनी व्हील चेयर पर बैठा था। चेहरे पर जख्म थे मगर आंखों में एक नई आग। एक अफसर ने आकर कहा, सर, दोनों औरतें अभी तक शहर में हैं, एक डिफेंस में, एक मॉडल टाउन के फ्लैट में। तैमूर ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खूब, उन्हें मत गिरफ्तार करो, उन्हें इंतजार करने दो। खौफ उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। फिर उसने आईने में खुद को देखा। जख्मों के निशानात उसके चेहरे पर नक्श थे। तुमने मेरा चेहरा जलाया, नेहा सुमरो, अब मैं तुम्हारा सब कुछ जलाऊंगा। दूसरी तरफ नेहा अपने अपार्टमेंट में थी। हर दरवाजा, हर खिड़की पर ताला लगा रखा था। फोन बंद, पर्दे गिरे हुए। फिर भी ऐसा लगता जैसे कोई उसके इर्द गिर्द मौजूद हो। रात को जब वो सोने गई तो बाहर से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कौन? कोई जवाब नहीं आया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा अंदर फिसला। उसने उठाया, खोला। अंदर एक तस्वीर थी, तैमूर मिर्जा व्हील चेयर पर, और नीचे लिखा था, तुम्हारी बारी आने वाली है। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से फोन उठाया, माहम को कॉल की। माहम, वो हमें ढूंढ चुका है, हमें यहां से भागना होगा। मैं आ रही हूं नेहा, अभी। 15 मिनट बाद माहम नेहा के घर पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था। नेहा, उसने पुकारा, पर कोई जवाब नहीं। वो अंदर गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। खिड़कियां टूटी हुई, फर्श पर खून के धब्बे, और कमरे के दरमियान नेहा का दुपट्टा पड़ा था, वही दुपट्टा जो उसने अपनी शादी पर पहना था। माहम के होंठ कपकपाने लगे। नेहा, कहाँ हो तुम? फिर अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक कर मुड़ी और सामने तैमूर मिर्जा खड़ा था। चेहरे पर जख्म, होंठों पर मुस्कुराहट। मैंने कहा था ना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। माहम पीछे हटी। तुम जिंदा कैसे बचे? मरने के लिए तुम दोनों कमजोर थी, मैं नहीं। तुमने मेरे खिलाफ साजिश की। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इंसाफ क्या होता है। माहम ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की मगर तैमूर ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। अब तुम्हारी बारी है, नेहा के बाद तुम। माहम ने कांपते हुए कहा, नेहा कहाँ है? तैमूर हंसा। वो वही है जहां तुम जाने वाली हो, अंधेरे में। सुबह की पहली रोशनी के साथ पुलिस की गाड़ियां नेहा के घर के बाहर रुकी। अंदर से सिर्फ एक लाश मिली, माहम की। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, कत्ल नामालूम शख्स के हाथों, मगर किसी को मालूम नहीं था कि कातिल खुद पुलिस का एक ऑफिसर था।
तैमूर मिर्जा अपनी गाड़ी में बैठा था, चेहरे पर वही पुरानी सख्ती। एक कांस्टेबल ने पूछा, सर, दूसरा हदफ? तैमूर ने सिगरेट सुलगाई। नेहा सुमरो अभी जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। दूसरी तरफ नेहा जागी, एक पुराने गोदाम में, हाथ बंधे हुए, आंखों पर पट्टी। दिल की धड़कन बेकाबू थी। पट्टी उतारी तो सामने तैमूर मिर्जा खड़ा था। तुमने समझा मैं मर गया? नेहा सुमरो, तैमूर मिर्जा कभी नहीं मरता। तुमने मेरी रूह जला दी थी, अब मैं तुम्हारी दुनिया जला दूंगा। नेहा के लब कपकपाए। तैमूर, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। चाहा या नहीं चाहा अब फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जिंदगी अब मेरी सजा है। नेहा ने जब आंखें खोली तो उसके चेहरे पर सर्द नम रोशनी पड़ी हुई थी। छत का पतला रोशनी का बलौर बेतरतीब झिलमिलाता। हवा में भारी धूल की महक थी। हाथ बंधे हुए थे, पट्टी आंखों पर लगी हुई थी और जिस्म में एक ऐसी थकन थी जो नींद से ज्यादा सानेह की थी। जब उसने अपने दिल की धड़कन सुनी तो लगा जैसे कहीं कोई ढोल अंदर से जोर जोर से बज रहा हो। खौफ का ताल, दर्द का साज। आहिस्ता आहिस्ता उसने पट्टी खोली। आंखें धुंधली थी, मगर फिर धीरे धीरे सामने जो शक्ल जमती गई वो थी सुरंग नुमा कमरा, मीठी रोशनी की कमी और कुर्सी जिस पर तैमूर का साया सा बैठा था। उसके चेहरे पर कोई शफा नहीं थी, जख्मों के निशान, मगर आंखें बदली हुई। अब इंतकाम के साथ एक सर्द प्लान शुदा सब्र भी था। उन्होंने तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आज़ादी छीन ली। तैमूर ने बेजा नरमी से कहा, तुमने जो किया वो हिसाब तलब करता है। नेहा ने जोर से बुरी तरह सांस ली और गले में घुटती आवाज निकली, तुमने माहम को मारा, तुमने सब तबाह किया। तैमूर के लहजे में कोई पशेमानी नहीं थी। माहम ने मेरे खिलाफ साजिश की, लाजमी सजा मिली, तुम्हारी मर्जी से या जबरदस्ती। फर्क इस दुनिया में सिर्फ इख्तियार का है, और जो इख्तियार मैंने ले लिया हो वही नफाज होगा। नेहा के अंदर से कुछ टूट रहा था, मगर साथ ही एक और चीज पैदा हो रही थी। पानी में दिए आग के टुकड़ों जैसी जलने की आमादगी। उसे याद आया वो लम्हा जब उसने चुपके से अदनान की तस्वीर देखी थी, जब उसने पहली बार महसूस किया था कि किसी की मौत का सच शायद वो नहीं जो दिखाया गया। और फिर माहम की आवाज, अगर तुम अपने लिए खड़ी ना हो तो कौन तुम्हारे लिए खड़ा होगा? अब वक्त था बोलने का। नेहा ने जोर से कहा, मैंने जो किया उसका हिसाब तुम खुद भी दोगे। तुमने हमें बांदी बनाया, मगर तुम अपनी जात से भाग नहीं सकते। तुम्हारी हलाकत की तारीख भी लिखी जाएगी और वो तारीख तुम्हारे नाम पर शर्मिंदगी बनेगी। तैमूर हंसा, मगर उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। तुम बातें करती हो नेहा, मगर बातें रेत की दीवारें हैं, हाथ लगाओ तो टूट जाती हैं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, खात्मा करीब है। नेहा ने गर्दन हिलाई और खामोशी से अपने आप में एक मंसूबा पाला। उसने महसूस किया कि उसके पास दो चीजें हैं, दर्द और जहानत। अगर वो जिंदा रहना चाहती थी तो अब चुप रहकर खुद को मौत के सामने पेश नहीं करना था। उसे सोचना था, चलना था और छुपकर दुश्मन की कमजोरियों में सुराग ढूंढना था। गोदाम के बीचों बीच एक छोटा सा मेज था जिस पर पानी की बोतल और एक टुकड़ा रोटी पड़ा था। वो कुछ खाने के बहाने उठकर बोतल की तरफ गई। तैमूर के पीछे खड़ी एक जवान कांस्टेबल खामोशी से उसे देख रहा था। वही कांस्टेबल जिसने कभी चुपके से नेहा को खत दिया था। नेहा ने उसकी निगाह में तस्लीम और अपील देखी। उसने बोतल उठाई, रोटी के एक टुकड़े को हाथ में लिया और नरमी से उसे कांस्टेबल की तरफ बढ़ाया। कांस्टेबल एक झिझक के साथ आया, उसके हाथ कांप रहे थे। नेहा ने आहिस्तगी से कहा, तुम्हारा नाम? वो मर्द एक लंबी सांस लेकर बोला, इमरान। नेहा ने आंखों में शुक्रिया का इशारा किया। इमरान की आंखों में खुलापन था, मगर उसके अंदर दबे खौफ के निशान भी नुमाया थे। वो जानता था कि तैमूर की रविश पसंद नहीं, मगर उसकी रट इसके ऊपर भारी थी। खानदान, कर्ज, खौफ, रोजगार। तुम्हारा दिल अगर सही सिमत में है तो दिल को आवाज दो।
नेहा ने कनपटिए पर हाथ रखा। हमें एक मौका दो। इमरान ने झट से दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही गहरी खामोशी थी जो उसने कई बार देखी थी, हिकमत और मुकाबले का मखलूत खौफ। फिर उसने आहिस्तगी से सर हिलाया और सरगोशी में कहा, रात 11 बजे जब तैमूर अपनी दवा लेने के बहाने बाहर जाएगा, मैं दरवाज़ा गैर संभालूंगा। तुम भागने की कोशिश करना, मगर खतरा बड़ा है। पकड़े गए तो तुम दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार अंदर से किसी ने कहा, खुदा का शुक्र है। वो जानती थी कि यह छोटा सा वादा शायद उसकी आखिरी उम्मीद का सहारा बनेगा। रात गहरी हुई। बाहर की दुनिया में हर तरफ सन्नाटा खुलकर घबराहट सुनाती थी। तैमूर वाकई बाहर गया, दवा लेने के बहाने से या शायद अपनी किसी सदाएं सुनने के लिए। इमरान ने ऊंची आहिस्तगी से आवाज में दरवाजा खोला। नेहा ने अपनी रेशम के चोगा ओढ़ा, हाथ में छोटा सा आहिस्ता सा चाकू रखा और आहिस्तगी के साथ दरवाजे की तरफ भागी। गोदाम के बाहर के रास्ते में धुंधली रोशनी थी। वो छतों के किनारे लपकी। सड़क तक पहुंचते पहुंचते दिल कांप रहा था। पर बाहर जो मंजर था वही था जिसका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। तेज तेज कदम चलते 3 नकाबपोश अफराद चौकीदार की तरह खड़े थे। तैमूर उनके साथ था और उनकी आंखों में वही चैन नहीं थी जो गुजरे दिनों में दिखाई देती है, बल्कि एक नई हिसाबी सर्दी थी। इमरान ने पीछे से ताला बंद करने की कोशिश की, मगर एक कड़ा साख्ता उसकी शर्मिंदगी के साथ उसके सर को मारा और उसने बेहोशी में गिर के कहा, भागो। मगर आवाज टपकती गई। नेहा ने दौड़कर एक गली में छलांग मारी, मगर फिर एक तेज हाथ ने उसे घेर लिया। एक मजबूत फर्द ने उसके हाथ पकड़ लिए। वो शख्स तैमूर था या कोई और। नेहा का दम घुट रहा था। एक जोरदार धक्का, एक कड़ा झटका और फिर सब कुछ गुम हो गया। रोशनी में वो हाथ जो उसकी कंधे पर मजबूती से बंधे थे, तैमूर की वो उंगलियां थीं। उसकी आंखों में एक तरह की खुशी के खामोश मजहर थे। क्या ख्याल था, भाग जाओगी? तैमूर ने सरगोशी की। नेहा की सांस रुक गई। उसने आखिरी लम्हे में देखा कि अतराफ में कौन लोग हैं। सामने एक शख्स ने चिल्लाकर कहा, खान साहब ने हुक्म दिया था, जो भी कोशिश करे सख्त सजा पाएगा। नेहा को लगा जमीन उसके नीचे से खिसक रही है, मगर अंदर की आवाज ने एक और कदम झुका दिया। ना घबराओ, ना भागो, सोचो। वो सब कुछ भूल गई। अब सिर्फ एक ही मुखातिब था, बचना, जंग, लड़ाई और जुल्म के खिलाफ एक छोटी सी लड़ाई। नेहा ने अपनी उंगलियों से जोर लगाकर वहां से छूटने की कोशिश की और सही लम्हे पर उसने कमरे में ठूंस कर रखा हुआ छोटा सा चाकू निकालकर सामने वाले की पेट में घुसेड़ दिया। उसने चीख मचाई और वो लम्हा काफी था। इमरान ने दोबारा कुव्वत हासिल की और एक झटके में दूसरी तरफ खींचकर कोंटे खोले। अंधेरा उसके दोस्त बन गया और नेहा ने होंठों से दबाकर एक चीख निकाली, भागो। और इस बार लोग हिलने लगे। वो भागी, अपने दिल की रोशनी में एक शोर के साथ सड़क पर गिरी, खून के निशानात के साथ, मगर जिंदा। पीछे से चमकती लाइटें, धीमी चीखें और फिर दूर से सायरन की कांपती आवाज, मगर वो आजाद थी, कम से कम अभी के लिए। उसने दौड़ते दौड़ते कहीं छुपने की जगह ढूंढी। एक खस्ता मुसाफिर कोच, जहां एक बुजुर्ग ने उसके चेहरे पर नजर डाली और आंखों में हैरत देखी। नेहा ने जबान से सरगोशी की, प्लीज छुपा दो, पुलिस ने मारा है मुझे। बुजुर्ग ने झट से उसे अंदर धकेल दिया। दरवाजा बंद हुआ और साये उसके गिर्द घेर गए। जब साकित हुआ, फिर नेहा के सीने से आहिस्तगी से दरारदार सांस निकल रही थी। वो लरज रही थी मगर जिंदा थी। उसने जेब से हाथ निकाला, उसमें सबसे कीमती चीज चेक की। जिप वाली लुक्की में छुपी हुई यूएसबी, वो अभी उसके पास बची हुई थी। उसमें तैमूर और हाशिम के दरमियान के पैगाम, सबूत और रिकॉर्डिंग्स, उन सब की मौजूदगी एक उम्मीद थी जो उसे जिंदा रखे गई। उसने अपनी उंगलियों में आहिस्ती से उसको दबाया और अपने आप को कसम दी, ये खत्म नहीं होने दूंगी। रात की हवा में जब वो कोच के बाहर झांकती, उसने देखा शहर की रोशनियां अब भी जारी थी, मगर उसके अंदर एक नया अमन था। वो अमन जो सिर्फ उस वक्त आता है
جب آدمی نے مرنے کے کنارے سے جینے کا انتخاب کر لیا ہو۔ اس نے جانا کہ ابھی راستہ لمبا ہے اور دشمن قریب ہے، مگر اس کی خارجیت بھی کمزور ہے۔ وہ اب صرف ایک عورت نہیں تھی جسے سزا ملی، وہ ایک شاہراہ پر کھڑی تھی جہاں ہر قدم اس کے حق میں اور ظلم کے خلاف ایک آواز بنے گا۔ اور نیچے کہیں تیمور ویل چیئر پر گھومتے ہوئے اپنی آگ میں دوبارہ ٹھنڈی مسکان چھپا رہا تھا، مگر اس کے اندر بھی ایک دراڑ تھی، ایک ایسا نشہ جو انتقام کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا، نیہا بچ گئی تو اچھا، اب کھیل کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ نیہا نے جب وہ چھوٹی سی USB اپنی انگلیوں میں محسوس کی تو اسے معلوم ہوا یہ لوہا نہیں بلکہ ایک جلتا ہوا ثبوت ہے، ایک ایسا ثبوت جو اس کے لیے آزادی بھی لا سکتا ہے اور تباہی بھی۔ گودام کی رات، کوچ کی ٹھنڈی دیوار اور بزرگ کا خوفزدہ چہرہ ابھی بھی اس کے سامنے تھے۔ اس نے دل میں ایک پختہ عزم جگایا، اب وہ بھاگنے والی نہیں، مقابلہ کرنے والی تھی۔ رات کی آخری پہر جب شہر کی روشنی مان پڑ چکی تو نیہا نے آہستگی سے کوٹ سے نکل کر ایک چھوٹی سی قریبی مسجد کے عقب میں چھپا ہوا فون آن کیا۔ رابطے کا نمبر وہی تھا جو ماہم نے پہلے دیا تھا، ایک معتبر انسان کا۔ نام تھا آغا احسن، ایک سینئر صحافی جس کا قلم کرپشن کے خلاف تیز تھا اور جو کبھی خوف سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ ماہم نے جب پہلی بار ہاشم کے حوالے سے اس کا ذکر کیا تھا تو اس کے لہجے میں احترام تھا۔ نیہا نے ہمت کر کے اسے کال کر دی۔ کال لگتے ہی ایک سرد آواز میں جواب آیا۔ کون ہے؟ نیہا نے ایک جھجک کے ساتھ اپنا حال سنایا، پھر خاموشی سے کہا، میرے پاس ثبوت ہیں، تیمور اور ہاشم کے درمیان ریکارڈنگز اور دستاویزات۔ اگر آپ واقعی ایسے معاملات اٹھاتے ہیں تو میری مدد کریں۔ کچھ دیر بعد آہستگی سے بولا، کیا تم لڑکی ہو؟ یہ خطرناک کھیل ہے، تم اکیلے نہیں سنبھالو گی۔ کل صبح 9 بجے، ایک چھوٹا کیفے، پرانا کمرہ نمبر 3، لوہے دل مضبوط رکھو۔ اگلی صبح نیہا نے چہرے پر سادہ کپڑے سجا کر کیفے کا رخ کیا۔ اندر خالی میزوں کے بیچ آہستہ قدموں سے وہ نمبر 3 کے کمرے میں گئی۔ آغا احسن پہلے سے بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی گھنی سچائی تھی جو پورے شہر کو جھنجھوڑ دیتی۔ اس نے USB کا معائنہ کیا، پھر نظریں نیہا پر جمی رہیں، جیسے زندگی کی قیمت کو تول رہا ہو۔ یہ مواد جب صحیح طور پر سامنے آئے گا تو یہ شہر ہل جائے گا، اس نے سرگوشی میں کہا۔ ہمیں ثبوت کی تصدیق کرانی ہوگی، لوگوں کو تحفظ دینا ہوگا اور قانونی راستے سے کیس کھولنا ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ نیہا نے آہستگی سے سر ہلایا۔ تیار ہوں، مگر ایک بات، مجھے اپنا نام نہیں چھپانا۔ میں چاہتی ہوں کہ جو ہوا وہ ریکارڈ رہے تاکہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ آغا نے لمبا سانس لیا، پھر بولا، اچھی بات ہے، تمہارے حوصلے کو سلام۔ آج سے ہم کام شروع کریں گے۔ اس کے بعد جو ہفتہ گزرا وہ نیہا کی زندگی کا سب سے خطرناک اور متلاطم عرصہ تھا۔ آغا احسن کی ٹیم نے ڈیٹا فورینزک کے ماہرین سے USB کی جانچ کرائی، فائلز کی نقلیں بنائی گئی تھیں اور خفیہ معلومات کے ذریعے سابق پولیس افسران سے رابطہ کیا گیا۔ شہر کے کچھ ایماندار قانون نافذ کرنے والے آخری لمحے تک مدد کے لیے تیار ہو گئے، مگر سب سے بڑا خطرہ وہی تھا جس کا نیہا نے اعتماد کیا تھا، تیمور مرزا، جو جتنا زخمی اتنا ہی خطرناک تھا، اور اس کا نیٹ ورک جو میلوں تک پھیلا تھا۔ ایک دن جب نیہا بریک کے بعد چھوٹے سے سادہ گھر میں اکیلی تھی، ایک خبر نے دنیا بدل دی۔ میڈیا پر آغا احسن کا خصوصی پیغام نشر ہوا، ایک مختصر کلپ جس میں اس نے کہا کہ وہ بہت جلد ایک بڑا انکشاف کرنے والا ہے۔ اگلے لمحے سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی۔ یہ وہی موقع تھا جس کا نیہا نے سالوں سے انتظار کیا تھا، مگر اسی کے ساتھ اسے معلوم تھا کہ آگے خطرہ زیادہ بڑھے گا۔ پھیلتے پھیلتے خبروں نے شہر کو جھنجھوڑ دیا۔ نیہا نے پردوں کے پیچھے سے دیکھا کہ کس طرح تیمور کے پرجوش حامی اور ہاشم کے رشتہ دار خوفزدہ ہو گئے۔ تلفیق کے محافظ ایک ایک کر کے اپنی جگہ ہلا رہے تھے، حکمران حلقوں میں دباؤ بڑھے اور دفتر کے اندر سے کچھ آوازیں بھی ابھرنے لگیں کہ معاملہ سنبھالا جانا چاہیے۔ آہستہ آہستہ عدالتی مراحل حرکت میں آئے۔ آغا احسن نے سب سے پہلے ایک سیزنل رپورٹ شائع کی، ریکارڈنگز کے حصے، سماعت کی شروعات اور چند پولیس اہلکاروں کے بیانات۔ عوامی ری ایکشن کے نتیجے میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم قائم ہوئی جس کی سربراہی ایک سینئر کمشنر نے سنبھالی۔
سچ یہ تھا کہ عدالت کے کمرے میں داخل ہونے والی فائلز میں اس طرح کی تفصیلات تھیں جو آئین کے اندر رہ کر بھی کئی طاقتور لوگوں کو ہلا دیتی تھی۔ تیمور نے خود کو عدالتی جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے عوامی بیانات میں خود کو مظلوم بتایا، الزام تراشیوں کو رد کیا اور اپنی قید و بند کے دوران ججوں اور پولیس افسران کو اپنی حمایت میں رکھنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر وہ بھول رہا تھا کہ سائبر شواہد، کاغذاتی ریکارڈز اور میڈیا کی روشنی میں چھپنے کا راستہ نہیں رہتا۔ ہاشم خان کا وجود اس درمیانی کشمکش میں واضح ہوا جب عدالت نے ہاشم کو کاروباری روابط کھنگالے تو پتہ چلا اس کے خلاف بینک ٹرانزیکشنز، اسمگلنگ کے ریکارڈز اور غیر قانونی اثاثے منسلک تھے۔ میڈیا نے دکھایا کہ اس طرح ایک طاقتور انڈر ورلڈ ڈان نے قانون نافذ کرنے والوں کے کچھ حصوں کو خرید رکھا تھا۔ عوام کے غصے نے دباؤ بڑھایا اور حکومت نے احتساب کے عمل کو تیز کیا۔ چند ماہ کی سخت قانونی لڑائی کے بعد جو شہرت، خوف اور وعدوں سے بھرا ہوا تھا، حقیقت کا سورج اب کھلا۔ پہلی بڑی کارروائی میں ہاشم کے کئی قریبی ساتھی گرفت میں آئے، بینک اکاؤنٹس منجمد کیے گئے اور اس کا جائیداد کا جال بے نقاب ہوا۔ عوامی عدالت میں آہستگی کے ساتھ اس کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ اس کے خلاف مضبوط شواہد آہستگی سے عدالت میں پیش کیے گئے۔ ریکارڈنگز جو نیہا کی USB میں تھی اور گواہوں کے بیانات جو پہلے خاموش تھے مگر اب بولے۔ تیمور کا انجام بالآخر ایک آئینی کارروائی کے دوران طے پایا۔ جب وہ عدالت میں پیش ہوا تو ایک طرح کی تناؤ کی کیفیت چھا گئی۔ کچھ لمحوں بعد اس کی صحت اچانک بگڑ گئی۔ وہ دل کا دورہ پڑنے کی شکایت کرنے لگا۔ جب ایمبولینس نے اسے اسپتال پہنچایا تو سب کی آنکھوں کے سامنے وہ شخص اپنے زخموں اور اپنے نفسیاتی رویے کے مابین کھو گیا۔ ڈاکٹروں نے بھرپور کوشش کی مگر تیمور مرزا کو اپنی زندگی کے ان گنت گناہوں سے نجات نہ ملی۔ اس کا جسم خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ اس خبر نے شہر میں مختلف رد عمل پیدا کیے۔ بہت سے لوگ خوش تھے، انہوں نے اسے انصاف کا نتیجہ کہا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے عدل الہی کا فیصلہ تھا۔ نیہا نے جب یہ خبر سنی تو اس کے اندر ایک عجیب ملا جلا احساس تھا۔ ایک طرف پرسکون کیونکہ وہ مسلسل خوف سے آزاد ہو گئی تھی، دوسری طرف ایک خالص دکھ کیونکہ اس کی عزم کی راہ میں ماہم جیسی قیمتی جان چلی گئی۔ اخراجات اور درد کے بعد عدالت نے ہاشم خان کے خلاف فیصلہ سنایا۔ کئی برس بعد جرمانے اور اس کی جائیداد کا محض برانڈ باقی رہا۔ جو لوگ اس کے نیٹ ورک کا حصہ تھے وہ الگ الگ جگہوں پر پکڑے گئے۔ پولیس کے اندر چند بدعنوان عناصر کے خلاف بھی کارروائی ہوئی۔ ان سب کے بیچ آہستگی کے ساتھ ایک نیا نظام ابھرنے لگا، کمزور مگر امید والی۔ نیہا نے عدالت میں بطور گواہ پیش ہو کر سچ کی تقاریر کی۔ اس نے اپنے غم، خوف اور اختیارات کے استعمال کے بارے میں کھل کر بات کی۔ اس کے الفاظ ایک طرح کی طاقت بن گئے، نہ صرف اس کے لیے بلکہ ان سب کے لیے جو ظلم کا سامنا کرتے ہیں۔ عدالت نے اس کے بیانات کو سنجیدگی سے لیا اور اس کی شجاعت کو تسلیم کیا۔ وقت نے زخم بھرنے کی کوشش کی۔ نیہا نے ماہم کی یاد میں ایک رضاکارانہ مرکز قائم کیا جہاں وہ خواتین کو قانونی رہنمائی، نفسیاتی سہارا اور حفاظت کے طریقے سکھاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ذاتی کامیابی کا اصل مقصد دوسروں کی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے ارد گرد لوگ جمع ہوئے، کچھ سابق متاثرین، کچھ نوجوان اداکار اور کچھ ایماندار وکلا۔ یہ چھوٹا سا مرکز امید کی کرن بن گیا۔ کتنی عجیب سی حقیقت تھی، جو عورت کبھی ایک مجرمانہ الزام کے نیچے دبی ہوئی تھی وہ آج قوانین کے سامنے کھڑی تھی اور اپنی محنت سے ایک چھوٹا سا انقلاب لے کر آئی تھی۔ شہر کا شور آہستہ آہستہ مان پڑ گیا مگر نیہا کے اندر ایک نرم روشنی پیدا ہوئی جس نے اسے زندگی کی طرف واپس کھینچا۔ ناول کے آخری منظر میں ایک شام وہ اس مرکز کے باہر کھڑی تھی۔ آسمان پر ہلکی روشنی تھی، ایک نرم ہوا چل رہی تھی۔ اس نے اپنی کھلی ہوئی کتاب بند کی اور آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ USB کی یاد، عدالت کے روزگار اور ماہم کا نام دل میں گونج رہے تھے مگر اس کے لبوں پر ایک پرسکون مسکان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی نے اسے سخت سبق دیا اور اس نے وہ سبق قبول کیا۔ انصاف آہستہ مگر پائیدار تھا۔ سچ نے زور سے شور مچایا اور اس شور میں نیہا نے اپنی آواز پالی۔ اس آواز نے نہ صرف اس کی داستان سنائی بلکہ دوسرے دنوں میں بھی امید کے چراغ جلائے۔ آخر میں وہ بولا، ہم میں سے کوئی بھی مکمل طور پر شکست نہیں کھاتا جب تک کہ وہ سچ کے لیے اٹھے۔ اور یوں ایک خاتون نے اپنی زندگی کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی، جہاں سر پر ظلم کا سایہ کمزور ہو
اور سچ کا شور ہر دل میں غور سے سنائی دے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔